मैंने 2-3 पॉइंट्स तो लिखवा दिए थे, आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। इट इज अ डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। It is a dark solid at room temperature. It is a dark solid at room temperature. First point. Second point लिखेंगे. It differs from the other two allotropes. It differs from the other two allotropes diamond and graphite. It differs from the other two allotropes diamond and graphite in the fact that diamond and graphite in the fact that diamond and graphite are giant molecules which consist of giant molecules. Giant मतलब GIANT मतलब बहुत बड़े molecules होते हैं. Are giant molecules which consist of an unending network of carbon atoms which consists of an unending network of carbon atoms but Buckminster fullerene is a very small molecule made up of is a very small molecule made up of only 60 carbon atoms. Made up of only 60 carbon atoms. Only 60 carbon atoms. उसके बाद नेक्स्ट नोट करिएगा. नेक्स्ट पॉइंट. An important physical property in which the three allotropes of carbon differ. An important physical property in which the three allotropes of carbon differ, in which the three allotropes of carbon differ is their hardness.
is their hardness. Full stop. Diamond is extremely hard, whereas graphite is soft. Diamond is extremely hard, whereas graphite diamond is extremely hard, whereas graphite is soft. Full stop. On the other hand, Buckminster Fullerene on the other hand, Buckminster Fullerene is neither very hard nor soft. Neither very hard nor soft. ठीक है, बकमिंस्टर फुलरी ना तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, और इसकी बाकी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनका अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसके अलावा और कोई फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी नहीं है। ठीक है, तो बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में हमने ये देखा कि यहाँ पर पेंटागन, एक पेंटागन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है कार्बन का, वो चारों तरफ से हेक्सागोनल रिंग्स से वो चारों तरफ से सर्कमस्क्राइब्ड होता है, घिरा हुआ होता है। उसके अलावा जो इसमें होते हैं कार्बन एटम्स होते हैं टोटल 60, तो टोटल 60 कार्बन एटम्स होते हैं बकमिंस्टर फुलरीन में। डायमंड और ग्रेफाइट के कंपैरिजन में ये काफी छोटा मॉलिक्यूल सॉरी, डायमंड और ग्रेफाइट के कंपैरिजन में ये काफी छोटा मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट में तो कितनी भी लंबी कार्बन चेन्स बन सकती हैं, बहुत सारे कार्बन एटम जुड़ सकते हैं, 100 कार्बन एटम, हजारों कार्बन एटम जुड़ सकते हैं डायमंड और ग्रेफाइट में, लेकिन बकमिंस्टर फुलरीन में केवल 60 कार्बन एटम से जुड़ेंगे, तो डायमंड और ग्रेफाइट के कंपैरिजन में ये काफी छोटा होता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है जिससे हम इन तीनों एलोट्रॉप्स को आपस में थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो क्या है कि जो डायमंड है बहुत ज्यादा हार्ड है और जो ग्रेफाइट है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, लेकिन जो बकमिंस्टर फुलरीन है उसको आप ना तो बहुत हार्ड कह सकते हो ना बहुत सॉफ्ट कह सकते हो, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो डायमंड और ग्रेफाइट के बीच की प्रॉपर्टी है, और रूम टेम्परेचर पर वो एक डार्क कलर का सॉलिड होता है। ठीक है, तो इतनी ही प्रॉपर्टीज बस बकमिंस्टर फुलरीन की पता है, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन इसमें कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करें। एन एलिमेंट belonging to group 14 of the periodic table an element belonging to group 14 of the periodic table has two common allotropes A and B. Has two common allotropes A and B. A and B. Full stop. A is very hard and a non-conductor of electricity. A is very hard and a non-conductor of electricity.
A is very hard and a non-conductor of electricity, while B is soft to touch. While B is soft to touch. While B is soft to touch and a good conductor of electricity. And a good conductor of electricity. And a good conductor of electricity. Identify the element, name each of these allotropes. Identify the element, name each of these allotropes. Identify the element, name each of these allotropes. अब देखिएगा, सीधी सीधी बात है यहाँ पर, एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैज टू कॉमन एलोट्रॉप्स ए एंड बी। तो दो कॉमन एलोट्रॉप्स जो मतलब हमको मिलते हैं वो कार्बन के केस में ही मिलते हैं, और बाकी इन्होंने हमारी जो डाउट था वो और भी ज्यादा इन्होंने क्लियर कर दिया। ए इज वेरी हार्ड एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, साफ समझ में आता है, बहुत हार्ड है, और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, डायमंड होगा। while बी इज सॉफ्ट टू टच एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ग्रेफाइट होगा। आइडेंटिफाई द एलिमेंट, नेम ईच ऑफ दीज एलोट्रॉप्स। तो हम ये कहेंगे एलिमेंट इज कार्बन, एलिमेंट इज कार्बन, ठीक है, और एलोट्रॉप एलोट्रॉप ए इज डायमंड एंड बी इज ग्रेफाइट। एलोट्रॉप ए इज डायमंड एंड बी इज ग्रेफाइट। बताइए जी, क्लियर है? यस। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बॉय शार्पन्स अ पेंसिल a boy sharpens a pencil at both the ends a boy sharpens a pencil at both the ends and then uses its back ends and then uses its a boy sharpens a pencil at both the ends and then uses its back ends to complete an electric circuit. Uses its back ends to complete an electric circuit. Full stop. Will the current flow through the electric circuit?
will the current flow through the electric circuit? Question mark. Give reason for your answer. Give reason for your answer. Name the black substance of the pencil. Name the black substance of the pencil. Name the black substance of the pencil. एक बॉय है, उसने पेंसिल ली, उसके पेंसिल को दोनों एंड से उसने शार्प कर लिया, तो पेंसिल तो पूरी वुडन होती है ना, तो बीच में से उसके ग्रेफाइट जो है उसको लेड में मिक्स करके और फिर वो पेंसिल का जो लेड है वो बनाया जाता है। यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर दिया, यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर दिया इसमें, इधर से और इधर से, ठीक है। और ये एक स्विच है और यहाँ नीचे हमने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया। तो मुझे ये बताना है कि ये बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। तो हम ये कहेंगे कि जब हमने इसको स्विच को ऑन कर दिया तो ये बल्ब ग्लो करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इन्होंने क्या पूछा है, विल द करंट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। हम ये कहेंगे यस, द करंट will flow through the electric circuit, will flow through the electric circuit. Yes, the current will flow through the electric circuit. Give reason for your answer. Because pencil leads are made up of bonded graphite. बॉन्डेड ग्रेफाइट का मतलब क्या है कि प्योरली ग्रेफाइट नहीं होता, ग्रेफाइट में थोड़ा सा लेड मिक्स करा जाता है, ठीक है, इसीलिए बॉन्डेड ग्रेफाइट बोल देते हैं उसको। बॉन्डिंग का मतलब उसके साथ में बॉन्ड बना रखा है, उसके साथ में उसको मिक्स कर रखा है। बॉन्डेड ग्रेफाइट which is a good conductor of electricity. फिर वो बोल रहे हैं नेम द ब्लैक सब्सटेंस ऑफ द पेंसिल। तो ब्लैक सब्सटेंस इज ग्रेफाइट। ब्लैक सब्सटेंस क्या है, ग्रेफाइट है। समझ गया बेटा, सबको क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलता हूं फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, अ पीस ऑफ ब्लैक इलेक्ट्रोड यूज्ड इन ड्राई सेल a piece of black electrode used in
A piece of black electrode used in dry cell on strong heating in air on strong heating in air a piece of black electrode used in dry cell on strong heating in air gave a colorless gas which turned lime water milky. Gave a colorless gas which turned lime water milky. Full stop. What was the material of the electrode? What was the material of the electrode? What was the material of the electrode? अब इसमें क्या है देखिएगा. A piece of black electrode used in dry cell on strong heating in air gave a colorless gas which turned lime water milky. ये बच्चा बच्चा जानता है कि ऐसी कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है. कार्बन डाइऑक्साइड. वो बोल रहे हैं पीस ऑफ ब्लैक इलेक्ट्रोड यूज्ड इन ड्राई सेल. ये हम यूजेस में कर चुके हैं ग्रेफाइट के. ये ग्रेफाइट जो है उसको ड्राई सेल में यूज करा जाता है. ड्राई सेल क्या होता है? ये जो बैटरीज होती है ना, जो हम अपने मोबाइल फोन में यूज करते हैं या वॉचेस में यूज करते हैं, इनके अंदर कोई लिक्विड सब्सटेंस तो नहीं होता ना. सूखी हुई बैटरीज होती हैं, ड्राई बैटरीज होती हैं. तो ड्राई सेल मतलब ड्राई बैटरी. ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, अगर उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हीट कर दिया जाए. एक मिनट. अगर ड्राई सेल को, मतलब जो ड्राई बैटरी होती है, अगर उसको बहुत ज्यादा तेज आग में उसको जला दिया जाए, स्ट्रॉन्ग हीट कर दिया जाए, तो एक गैस लिबरेट होती है. वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है. तो हम ये कहेंगे गैस विच टर्न्ड lime water milky is carbon dioxide. Gas which turned lime water milky is carbon dioxide. और मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड क्या था? Material of the electrode is graphite. Material of the electrode is graphite. ठीक है. तो यहां तक हमारा जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन वाला पोर्शन यहाँ पर खत्म होता है. अब इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं. जो हमारा सिलेबस में अगला टॉपिक है वो यही है. तो नेक्स्ट आप नोट करिएगा. नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स.
नेक्स्ट आप लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नोट करिएगा, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। The compounds of carbon are known as organic the compounds of carbon are known as organic compounds. Most of the carbon compounds most of the carbon compounds are most of the carbon compounds are non-conductors of electricity. Most of the carbon compounds are non-conductors of electricity. Organic compounds occur in all living things. Organic compounds occur in all living things plants and animals. All living things, plants and animals. फिर लिखें लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। large number of organic compounds. Large number of organic compounds. Note करें the number of carbon compounds already known at present the number of carbon compounds already known at present the number of carbon compounds already known at present is more than 5 million. Is more than 5 million. अंडरलाइन कर लेना 5 मिलियन को. Is more than 5 million. So there are two reasons for the same. जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मैं आपको पहले भी एक बार ये बताया था मैंने कि केमिस्ट्री की एक जो टोटली डिफरेंट ब्रांच होती है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ते हैं,
उसको हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी तरीके से जो कार्बन के कंपाउंड्स है ना, जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल देते हैं। ठीक है, तो अब उसमें चाहे कोई भी प्लांट मटेरियल आ गया हो या कोई एनिमल मटेरियल आ गया हो, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मीट की बात करें तो मीट कहाँ से बना? मीट बना एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स के फ्लैश से बना मीट, तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम मान लीजिए किसी सब्जी की बात करें, तो वो जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, तो वो जो हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो जितने भी नेचुरली अकरिंग जो कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, जो नेचर में मिलेंगे, वो मोस्टली सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। और वो सारे के सारे, उनमें जो मेजर जो रोल प्ले करता है वो कार्बन प्ले करता है, कार्बन के ही बने होते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ज्यादातर जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर इन ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सभी लिविंग थिंग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, इसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। उसके बाद हमने ये कहा कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या आप रीजन बताइए कि ऐसा क्या रीजन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड भरे हुए हैं पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं, उसके अलावा और कोई कंपाउंड है नहीं। मतलब हैं और कंपाउंड्स, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो अब तक हमको पता है वही 5 मिलियन से ज्यादा है। उसका रीजन क्या है? तो देयर आर टू मेन रीजन फॉर दिस। पहला रीजन लिखेंगे, पहला रीजन नोट करें। कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है, खास प्रॉपर्टी, कि वो लंबी से लंबी कार्बन चेन बना लेते हैं। तो पहला सबसे मेन रीजन यही है इसका। फर्स्ट रीजन, आप लिखें, वन रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वन रीजन फॉर द existence one reason for the existence of a large number one reason for the existence of a large number of carbon compounds for the existence of a large number of carbon compounds is that carbon atoms can link with one another। कार्बन कंपाउंड्स के आगे ब्रैकेट में लिख देना बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। is that carbon atoms can link is that carbon atoms can link with one another by means of covalent bonds। with one another by means of covalent bonds to form long chains or rings of carbon atoms। To form long chains or rings of to form long chains or rings of carbon atoms। ठीक है। सेकंड रीजन, another reason for the existence, सेकंड लिखें,
another reason for the existence of a large number of organic compounds or carbon compounds, another reason for the existence of a large number of carbon compounds or organic compounds is that the valency of carbon compounds is that the valency of carbon is 4, which is quite large. Valency of carbon is 4, ब्रैकेट में लिखिए, which is quite large. Is 4, which is quite large. Full stop. Due to its large valency of 4, due to its large valency, of 4, a carbon atom can form covalent bonds covalent bonds with a number of carbon atoms as well as the number of carbon atoms as well as with a large number of other atoms as well as with a large number of other atoms such as hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. Such as hydrogen, nitrogen, oxygen, etc. This leads to the formation of a large number of organic compounds. This leads to the formation of a large number of organic compounds. बताइए कि दोनों रीजन क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है ना कि कितना मतलब जो भी अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं तो जिस एलिमेंट की जितनी ज्यादा बड़ी वैलेंसी होती है ना वो उतने ही ज्यादा कंपाउंड्स बना पाता है। तो पहला रीजन तो ये है कि उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो किसी और एलिमेंट में देखने को नहीं मिलती। कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कि खुद के साथ ही लिंक करते 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 बड़े से बड़ा बहुत बड़ी से बड़ी चेन वो बना सकता है। तो पहला रीजन तो ये है, ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि उसकी जो वैलेंसी है वो बहुत बड़ी है। अब आप ये देखिएगा जैसे हमने ये फर्स्ट पॉइंट लिखा, फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ तक लिखा, कितनी लाइनें हैं ये 7 लाइनों का ये हो गया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइंस का ये हो गया। अब ना एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है इसको एक्सप्लेन आप सिर्फ और सिर्फ तब करेंगे जब ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए। समझ रहे हैं?
अगर ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए तो पहला पॉइंट पूरा का पूरा, देखो लर्न तो पूरा ही करना है आपको ये, ठीक, लेकिन जो एग्जाम देना है वो एग्जाम थोड़ा सा स्मार्टली देना है कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तब तो आप ये पूरा का पूरा लिखेंगे। अगर मान लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर के क्वेश्चन में ये चीज पूछी जाती है तो क्या करना है, बस आप लिखेंगे देयर आर टू रीजंस, वन रीजन इज नोन एज कैटेनेशन दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, एक लाइन खत्म, बस इतना, ठीक। दूसरा रीजन ये लिखेंगे ड्यू टू इट्स लार्ज वैलेंसी ऑफ 4 इट फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद कार्बन एटम्स एज वेल एज अदर एटम्स, खत्म। बस ये 2 लाइनें लिखनी है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का आएगा तो पहले पॉइंट में 1 लाइन और दूसरे पॉइंट में 1 लाइन, ठीक। उसके अलावा अगर मान लीजिए 4 या 5 नंबर का, क्योंकि कई बार ये गेम बहुत होता है सीबीएसई में, कई बार होता है कि वो सेम क्वेश्चन की वेटेज बहुत ज्यादा आ जाती है, आपको लगता है कि यार इसमें तो मेरे पास मटेरियल उतना है नहीं, तो आपको क्या करके जाना है, आपको मटेरियल तो इतना सारा प्रिपेयर करके ले जाना है, ठीक, लेकिन अगर इतने की जरूरत हो तो इतना ही डालना वहां पर, ठीक है, वहां पूरा का पूरा मटेरियल डालने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपकी प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए, आपको सारी चीजें अच्छे से आनी चाहिए। तो 2 ही रीजन है, उसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये टीचर्स का, ठीक। ये सभी को क्लियर है, बताइए, चलें आगे। यस सर। यस ठीक है, सर। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Types of organic compounds. Some of the common types of organic compounds are some of the common types of organic compounds are, first है hydrocarbons, हाइड्रोकार्बन्स। सेकंड है हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स। थर्ड है एल्कोहल्स, फोर्थ है एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स। फिफ्थ है कीटोन्स, और सिक्स्थ है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ब्रैकेट में लिखिएगा ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। ये 6 टाइप्स के हैं हमारे पास का, जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स 2 तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को हम सिर्फ एल्केन्स बोलते हैं, और अनसैचुरेटेड जो है वो भी दोबारा 2 टाइप के होते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। हेलो एल्केन्स क्या है कि जहां पर भी क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन के साथ कार्बन के किसी भी कंपाउंड का क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन के साथ कॉम्बिनेशन होता है उसको हेलो एल्केन्स बोलते हैं। जहां किसी भी कार्बन की चेन के साथ में हाइड्रोक्साइड आयन OH जुड़ जाता है उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। जहां किसी भी कार्बन के कंपाउंड के साथ में CHO जुड़ जाता है उसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं। जहां किसी भी कार्बन की चेन के 2 टुकड़े हो जाते हैं और 2 टुकड़ों के बीच में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ता है उसको कीटोन बोलते हैं।
और जहां पर C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH जुड़ता है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये इसकी पूरी एक टेबल बनवा के फिर आपको नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ मैं। और ये बड़े आसानी से आपको क्लास में ही एक तरह से लर्न हो जाएगी ये चीज, कहीं पर भी आप भूलेंगे नहीं, सारी चीज अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, कार्बन वाला जो चैप्टर है उसमें जो अभी तक हमने जितना भी पोर्शन करा था इसमें उसमें तो डायरेक्ट थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, इन क्वेश्चंस में आपसे स्ट्रक्चर भी बनवाया जा सकता है, इन क्वेश्चंस में आपसे न्यूमेरिकली ये भी पूछा जा सकता है, मतलब न्यूमेरिकल की फॉर्म में वो क्वेश्चन आएगा, उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि एक चेन दे रखी है तो उस कार्बन के कंपाउंड का नाम क्या होगा, या एक नाम दे रखा है तो उससे आपका कार्बन का कंपाउंड बनेगा कैसा, वो बनाकर दिखाइए। ठीक है ना, तो ये आपका नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही कर लीजिए। थैंक यू सर। चलिए जी, ओके। थैंक यू सर। ओके।